Good morning, students. Today I welcome you all in this class of philosophical foundations of education. And we shall be studying in this class about the latest trends that are there regarding education. Education is a field where you find new innovations, new techniques of teaching, techniques of teaching learning processes, which automatically take us to various aspects and various accomplishments. और हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि आज का दौर, ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना फ्रूटफुल है. For example, right now, we are using this latest new techniques of teaching learning process where we are using Zoom classes, where we are using Google classes, where we are using the e-learning methodologies of teaching. और इसी दौरान आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये कितना आवश्यक है, आपके लिए कितना ज़रूरी है, जिसमें आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. ये हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज live classes we are using, we are studying, we are coming learning of so many various things. और इसी के लिए आप सभी जानते हैं कि e-learning हो गई, virtual classes हो गए, जो online classes हैं, how much we have been using it for the last few months. जब से ये इतना पैंडेमिक का आना हुआ, we have our learning, our education system has mostly shifted to online teaching, online learning classes, and I'm sure you must be benefiting from it all. And we will be studying today the latest technology, latest trends that have been prevalent. और अपने previous classes में हम लोगों ने पढ़ा था कि education कितना important है. So students, I welcome you all, myself Dr. Roli Rai, and this paper which we are dealing with, philosophical foundations of education, that is BEd 2101. That is the paper we will be studying in this unit 1 of ours. So let us begin with the topic where we shall be studying about the classes. Now, okay. So that is a new trends in education, new technologies that have been brought about. What are the changes that are occurring in our system? ये जो new emerging trends है education में, इस पर एक slide हमने prepare करी है, और उस slide के दौरान आपसे संपर्क कराते हुए हम आपसे discuss करेंगे कि क्या शिक्षा प्रणाली में क्या changes हैं और किस प्रकार से हम education system में changes लाते हैं. So now the word trends justifies about the tendency of the system with several educational options available to students today. Newer trends are emerging in this field which are completely changing the traditional perspectives which are held and the perceptions of education in India. आप सब जानते हैं कि ये जो system of education है, ये जो perceptions है, उसमें किस प्रकार से ये changes occur करते हैं, कैसे ये changes आ रहे हैं. और आज के दौर में अगर ये टेक्नोलॉजी को हम यूज में नहीं लाएंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे, तो यू कैन से इट विल बी लैगिंग बिहाइंड. सारी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टू इट. मे बी वी हैव बीन अ लिटिल लेटर राइट नाउ, लेकिन हम इस चीज से मुकर नहीं सकते इस बात से कि सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी शिक्षा की फील्ड को इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा ही तो वो एक ऐसी फील्ड है जो आने वाले हर दौर, हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर करती है. सो एजुकेशन आप सब जानते हैं, आप तो टीचिंग, यू आर इन द लाइन वेयर यू आर गोइंग टू बी ट्रेन्ड फॉर टीचर्स, और ट्रेनिंग फॉर टीचर्स मीन्स कि आप अपने भविष्य के सारे स्टूडेंट्स को किस प्रकार से शिक्षा देंगे. जितनी भी हमारी ग्रूमिंग होती है, जितनी भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसके दौरान आप इस बात को समझते हैं कि आपकी ट्रेनिंग है ना केवल आपके अपने के लिए, बल्कि उन भविष्य के आने वाले बच्चों के लिए जिसमें आप बच्चों को शिक्षा देते हैं. नाउ ये जो न्यू ट्रेंड्स हैं जिसमें इमर्जिंग एजुकेशन की बात की जाती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशंस एंड द परसेप्शंस अबाउट एजुकेशन सिस्टम. बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि पहले ट्रेडिशनल व्यूज पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी,
लेकिन धीरे धीरे जो ये करियर ऑप्शंस हैं, दे हैव बीन चेंजिंग टुवर्ड्स, यू कैन से, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए इमर्जिंग ट्रेंड्स में बहुत सारे करियर्स, जैसे कि रेडियो जॉकी है, रेडियो मैनेजमेंट है, न्यूज एंकरिंग है, प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि एंकरिंग की जाती है, न्यूज रीडिंग की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कंटेंट राइटिंग है, जो फैशन डिजाइनिंग है, ये सारे इवेंट्स को मैनेज करना, जो हॉस्पिटल्स को मैनेज किया जाता है, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन फैक्ट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, is with the relation of upcoming trends. और ये इन ट्रेंड्स के दौरान आप समझ सकते हैं कि जो न्यूअर एवेन्यूज हैं जो एजुकेशन सिस्टम के, they lead towards that. The current trends as we talk about in the education system is relating to the various aspects, जिसमें आप कहते हैं कि द क्लासरूम्स जिसमें बच्चे बैठे होते हैं और जिसमें प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आर टेकिंग द क्लासेस, दे कंटिन्यू टू लर्न एंड टू लिसन, मगर उस सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज की इम्पोर्टेंस होती है, दैट इज रिलेटिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ believing to the continuous acceptance of the mode of instruction. Despite many technological advances and the introduction of new pedagogy which is being accepted, and the majority of, you can say, relating the advancements and the introduction of these concepts, जो classrooms हैं उसको in traditional usage को हमें use करना पड़ता है। क्या होता है कि जब विद्यालय में, स्कूल्स में जो नई टेक्नोलॉजी के तहत हम बात करते हैं, you will find there are many classrooms where are audio visual rooms there in the school system, और उस audio visual रूम्स में, एवी रूम्स में बच्चों को ले जाया जाता है और उनके संबंधित क्लासेस से उनको अवगत कराया जाता है। मे बी अगर मैथ्स में वो कुछ पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस, तो उनको ले जाके एक प्रैक्टिकली एक कोई मे बी एनिमेशन के थ्रू, मे बी लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से क्या हो रहा है, तो उसको एक ऑडियो विजुअल एस्पेक्ट के तहत लिया जाता है। सो दैट इज इन रिलेशन विद द वेरियस एस्पेक्ट्स। ये जो ट्रेडिशनल मोड्स होते हैं इसमें चेंजेस लाए जाते हैं, and that naturally takes into account the various aspects of learning. Now this when we talk about the challenges that are occurring, the various aspects जहाँ पे दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, छोटे बड़े हर प्रकार के, जो टेक्नोलॉजीज हमें अलाउ करती हैं, जो हमें कम्युनिकेट करने के लिए, now what are they that is happening? ये जो सिस्टम है इसमें नॉलेज एक्सप्लोजन हो रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आती जाती है और नई चीजें आती हैं। सी, हिस्ट्री विल रिमेन द सेम, बट वॉट एवर इज इन द टुडेज सिस्टम, आज के दौर में जो भी है वो धीरे धीरे हिस्ट्री में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि नई चीजें, नई जो इनोवेशंस हैं वो उसकी जगह ले लेती हैं। So you find that this explosion is a result of the ability to communicate globally, and the information explosion takes place. And this explosion and must relate to the education system. और जो educators हैं, they might not want, see change क्या है कि परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं चाहता, अधिकतर लोग परिवर्तन से डरते हैं, मगर दुनिया में अगर कोई भी चीज निश्चित है, if there is anything in this world which is permanent in nature, which is necessary, जिसकी सर्टेनिटी है, वो है चेंज। समाज में परिवर्तन के अलावा कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि ये होगी या नहीं होगी। अगर कोई चीज अकर करेगी तो ये बात पक्की है कि दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू learning teaching process. Now, as a result of the ability to communicate globally, we say that this education must change. This, अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो क्या लाएगा? शिक्षा लाएगी। सोसाइटी में चेंजेस एजुकेशन लाती है, और एजुकेशन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से ये चेंजेस अकर करते हैं। और मोस्ट एजुकेटर्स मे नॉट बी वांटिंग द चेंजेस, मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में होते हैं, उनको भी आप देखिए परिवर्तन नहीं पसंद आता। अगर आप कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन भी घर में कराना चाहिए तो चेंजेस देने से नो, लेट दैट रिमेन, ये हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है और ऐसे ही रहने दो। घर में जो भी चीजें होती हैं, पीपल जनरली डोंट लाइक टू रिमूव दैट।
So it is a matter whether it is going to change or not change, but change तो अकर करेगा. ये चाहे रात और दिन की प्रक्रिया हो, चाहे सुख और दुख की प्रक्रिया हो. See, we are dealing with the subject of education, we are dealing with the subject of philosophy, so naturally these things always make room for the fact that changes will occur. परिवर्तन जरूर जरूर होगा. ना ये जो चैलेंजेस हैं ये हमारे आने वाले बच्चों में भविष्य में चेंजेस जो लाते हैं उसके कारण बहुत ही अलग प्रकार की बच्चों के लिए दुनिया हो जाती है. बच्चों की जो अपना देखने का नजरिया है, बच्चों का जो अपना दायरा है, उसमें भी परिवर्तन अकर करते हैं. और ये जो जॉब्स होते हैं जिसमें इन्वेंट किया गया है बच्चों के लिए, और जो टेक्नोलॉजीज लाई जाती हैं, उसमें बहुत सारे जो ड्रीम्स बच्चे लेते हैं, they all have scope for bringing those changes, for making those changes occur. Now, when we talk about the current teaching changes, the paradigm of teachers as a professors and the transformation of information, shifting from new paradigm of the teachers as a facilitator or coach, we find ये धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता है. उसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना पड़ता है, और बच्चों को खासतौर से नई चीजों को एक्सेप्ट करना, पुरानी चीजों में बदलाव लाने की संभावना यदि है, यदि चेंजेस अकर कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वी टॉक अबाउट. नाउ ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसमें कंटेक्सचुअल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वो कंटेक्सचुअल नॉलेज आती है, तो यू फाइंड दैट दिस कंटेक्सचुअल नॉलेज इज रिलेटिंग टू द fact when we talk about the changes occurring in the technology and the form of computer, internet, the data pack that we have. We talk about different things that are occurring. इतना staggering fast तरीके से सब में changes occur कर रहे हैं कि जो computer है, जो हमारा वो जो पुराना computer हुआ करता था उसमें भी बदलाव आ गया है. वो डेस्कटॉप्स बदल गए हैं. जो एंटायर जैसे कहना चाहिए कि एक हर प्रकार का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, वो जो आज से 20 साल पहले था वो 10 साल पहले नहीं था. जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है, और आने वाले समय में बदलाव आएंगे. सो नेचुरली द सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विल बी ब्रिंगिंग चेंजेस. नाउ ये जिन चीजों की हम बात करते हैं, ये स्टूडेंट टीचिंग टीचर्स, आज के जमाने में अगर हम कहें कि केवल टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम टीचर्स आप बच्चों से सीखते हैं. There are so many things that we for the first time I will tell you honestly कि जब मैंने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया, मैंने अपने बच्चों से सीखा. They were much more apt in doing those work on the computer rather than me. और उस पर परफॉर्म करना, उस पर बहुत सारी नई चीजों को सीखना, कैसे जूम पे क्लास लेना है, all those things are learning things for me also, so it is for all the teachers as well. So contrary to the old belief that students are too young, जो भी चीज ज्यादा नोन से कम नोन की तरफ आती है, जो भी जानकारी, जो भी ज्ञान, हम बड़े लोग हो या छोटे बच्चे हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ज्यादा एजुकेटेड हो, कोई कम एजुकेटेड हो, फिर भी ज्ञान जो ट्रैवल करता है किसी भी फॉर्म में, वो एजुकेशन सिस्टम बनाता है. वो स्टूडेंट से टीचर की ओर आता है और टीचर से स्टूडेंट्स की तरफ जाता है. So that can be delivered in the best possible way. So we come to the next this thing. It is also found that you can say that the learning teachers are students that give the teaching learning process, where the students have a chance to contribute and even revise the classroom rules, actually make the students abide to them. It gives them the feeling that they actually have a say on what goes on in the classroom, and the students tend to you can say move and follow the classroom teaching. और ये जो रूल्स होते हैं, इसके तहत बच्चे सीखते हैं कि कैसे उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव लाना है. नाउ लेट मी टेल यू, जब आप अपने क्लास में पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स चार्ट पेपर्स पे बना के कुछ लाते थे, कुछ दिखाते थे. आपके पास में सॉफ्ट बोर्ड्स होते थे जिन पे कुछ ना कुछ लिखा रहता था, आप जिनके द्वारा आपकी लर्निंग होती थी. बट नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग. It is not just the paper and pen, it's just not the blackboard and chalk, but it is so much more than that. क्या है वो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के दौरान आप बच्चों को जब सिखाते हैं, तो मे बी यू माइट बी यूजिंग योर लैपटॉप्स फॉर showing them a PowerPoint presentation, showing them a slide show, maybe moving on to
दैट इज वाई जब हम आपको इस पे पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम आपको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं. Maybe I have prepared a slideshow for you, which I am showing you slide by slide. So learning takes place in any form, and that is how it is reaching out to the students. Now, when you pay close attention to each student's need, naturally the educators are not looking at their class as a collective. They see them as different individuals with different needs, which is why some students will lag behind and others will be up to date towards the lecture, and some will be much more ahead. And educators can help these students to keep up with giving them the personalized attention. कई बार ऐसा होता है जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कलेक्टिव फॉर्म में लर्निंग कराने की जगह आपकी लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस लर्निंग प्रोसेस इज सच वेयर एजुकेटर्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स टू कीप अप बाय द गिविंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन. हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होती है कि हम जब बच्चों को सवाल देते हैं, बच्चों को जब कंटेक्स्ट मैटर पढ़ाते हैं, जब इलस्ट्रेशंस देते हैं, they must be related to their daily life. बच्चों की आम जिंदगी से वो रिलेटेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए. सपोजिंग आप गांव में पढ़ा रहे हैं और गांव में आप बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, गांव में आप बात कर रहे हैं बच्चों से कह रहे हैं कि फ्लाइट में ऐसा होता है ना. बच्चों को नहीं पता, उन गांव के बच्चों को नहीं पता कि फ्लाइट का एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे अनुभव करते हैं, कंप्यूटर अपना लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप क्या होता है. नो, so there is no point in giving examples of such kind. It is simply a question that आप बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देंगे, वो उनको इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखकर, बच्चों के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर, उनके अनुभवों को आप माध्यम बनाते हुए एग्जाम्पल्स उसी से कोट करेंगे. अगर आप बच्चों से, गांव के बच्चों से बात करें, आप उनके खेत खलिहान की बात करेंगे, फसल के बारे में बात करेंगे, आप उनको रिलेट करेंगे बैलगाड़ी से, ना कि एरोप्लेन से. You will be giving examples from their day-to-day basis, from their daily life. और इन चीजों की जब आप बात करेंगे तो बच्चों को पर्सनल अटेंशन मिल पाएगा and they'll be able to learn more faster. So there are more recent terms in the system of education. These are very promising signs which they show the education system is improving and it is no longer related to the old system of education. When we talk about the virtual or online teaching learning process, you come to the point that we have so many states, 48 states in the District of Columbia says, and there are so many states in our country of India. वहाँ पे क्या सीजन है कि there are different problems, different things, different examples, and they all need to be related. और ये जो कोर सब्जेक्ट्स जिनकी हम बात करते हैं, इलेक्टिव्स की बात करते हैं, वो उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो वर्चुअल क्लासरूम्स की बात की जाती है, इसमें हम नए तरीके के डेटा को यूज करते हैं, ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स. अब क्या किया गया है, जब गांव के लोग शहर तक नहीं आ पाते, कई लोगों से अगर आप बात करिए, पुराने लोगों से या जो आपके गांव में, वो बताएंगे कि बहुत दूर कई मील चलकर वो विद्यालय अटेंड करने के लिए उनको आना पड़ता था. that they were forced to come to with बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते थे. तो अब क्या करा गवर्नमेंट ने कई जगहों पे कि मोबाइल स्कूल्स बनाए जिसमें टीचर जाती है उनके गांव तक और वो शिक्षा ग्रहण करते हैं. And there are so many things that they learn during this process that they are able to understand the core subjects, the elective subjects, the co-curricular activities, there are programs which are organized. Then there are adult education programs, there are education for women. और ये सारी चीजें बच्चों को ग्रो करने के लिए, बच्चों का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए, they are using the new, not the old traditional ways, but the new latest techniques of education. Then there are full-time online schools also, जहाँ पे बच्चे enrolled है and they learn and how these education are learning. They are just not schools which are based on bricks and mortars, and instead of their instructions being given, they are being passed on by the online schools. And you find the blended learning process you find over here. And blended learning process क्या है? That is actually the learning opportunities which are incorporate face-to-face, online, degree courses. Then there are so many
आप हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के दौरान आपको नौकरी करनी पड़ जाती है, तो आपकी पढ़ाई छूट जाए, या किसी और व्यक्ति की जिसकी एज ज्यादा हो गई, या जिसकी शादी हो गई, या जहाँ पे कोई ऐसी जगह मूवमेंट करना पड़ गया, घर के परिवार की परिस्थिति ऐसी हो गई. सो व्हाट डू? they start learning in such a manner that this strategy of blending of online learning with school-based instruction is often utilized to accommodate students' diverse learning styles, to enable them to work before or after school in ways that are not possible for full-time conventional classrooms. तो जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है उसके फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, उसका फिक्स सिलेबस होता है, और इस वजह से अक्सर लोग टीचिंग नहीं उतनी ग्रहण कर पाते. तो उस केस में it is better that they have the online teaching process. Then we come to the aspects जहाँ पे हम online teaching learning के लिए there are potentials to learn during this process, और इसमें educational productivity by accelerating the rate of learning, taking advantage of learning time outside of school hours, reducing the cost of instructional material, and better utilizing teacher time. This relates to the strategies that can be particularly useful in rural areas, और इसके दौरान ये blended form of learning के तरह से students को helpful रहता है. So we come to the open education resources, जहाँ पे जैसे आपने कई जगह सुना होगा ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के बारे में सुना होगा आपने, बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज के बारे में सुना है, जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं. ये सारे न्यू ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के, कि इसका पर्पस बेसिक सिर्फ मैक्सिमम ये है कि सबके पास शिक्षा पहुंचे. एजुकेशन का पर्पस है कि वो सब तक पहुंच सके, फुलेस्ट ऑफ फॉर्म में, बेस्ट पॉसिबल वे में. एडल्ट्स हो तो भी, शिक्षा छूट गई हो तब भी, और यदि एजुकेशन सीखने के लिए वो हाउसवाइफ्स हो, whether they are doing job, part-time jobs. So teaching learning process has been made freely available to anyone over the web. They are an important element of an infrastructure for learning and range from podcasts to the digital libraries to textbooks and games. It is crucial, you can say, it is critical to meet the standards, you can say, standards of quality, integrity, and accuracy as far as any other educational resources are concerned, that is they are accessible to the students with disabilities. So we come to the use of digital resources, and these digital resources, how it can be utilized to the maximum, to the best possible manner. तो इसके लिए होने को ये है कि आप कह सकते हैं कि बहुत चीजें अवेलेबल हैं, मगर उसकी यूटिलिटी तभी है जब वो लोगों तक पहुंचे, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, उसका मैक्सिमम यूसेज हो. जानकारी नहीं होती, इग्नोरेंस होती है, अवेयरनेस नहीं होती, that is another drawback. And so those electronic grades and the books and the digital portfolios and the learning games and the real-time feedback of teachers and students' performance are a few ways of technology which can be utilized to power learning. और ये power learning के लिए जरूरी होता है कि किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सके. आपको ये पता होगा कि कैसे हम उस चीज को, लर्निंग को कैसे इंपॉर्टेंट बताते हैं. इट इज बेसिकली, यू कैन से, रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, मगर उसका यूसेज नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसको कैसे यूज करना है सबको. यू नो दैट बैंक्स जैसे ऑपरेट करते हैं, यू हैव ऑनलाइन बैंकिंग, यू हैव द फैसिलिटी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द स्टूडेंट्स पर्पस. लेकिन कई बार क्या होता है, पीपल से अरे रहने दो, हम जाके कर लेंगे, हम उसको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं, हमें डर लगता है. Why is that so? Because there is still lack of awareness. आज भी कितने लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट्स है ही नहीं, वो घर में पैसा रखते हैं. Why? There are banks, there are lockers provided. Why should the lockers not be used? Why should that facility? उससे वंचित क्यों रहे हमारे लोग, हमारे समाज, हमारी बहुत सारी जो शिक्षा मिल सकती है वो हाउसवाइफ लेना चाहती और नहीं ले पाती. क्यों? कहती है नहीं हो पाएगा, हम कैसे पढ़ पाएंगे. There are so many you can say resources, so much of knowledge, there are online libraries available.
और इन सब का यूटिलाइजेशन भी जब तक हम डिजिटल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, यूसेज नहीं करेंगे, it shall not be of any purpose. We come to the recent trends and developments in education. It highlights the vital and salient role of education in effectively meeting the growing political and socio-economic challenges in the society. With the fast development and many variations, conflicting trends can be noticed in the education system in India. ये जो समाज में हो रहे परिवर्तन है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो इतने प्रकार के आप देखते हैं, सरकार बदल जाती है, सोशल स्टेटस बदल जाते हैं, हमारी कंट्री में गरीबी बहुत है, लेकिन तब भी परिवर्तन आ रहे हैं, मगर उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना, उसको एक होता है रेजिस्टेंस ना रखें, टू अवॉइड एनी रेजिस्टेंस, उससे फाइट ना करा जाए कि जो चेंजेस अकर कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको एक्सेप्ट किया जाए। तीसरी बात, उसको यूटिलाइज किया जाए। और उसके बाद में जो फास्ट डेवलपमेंट्स होंगे, जो बेहतरी के लिए होंगे, वो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। एंड दोस कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स कैन बी नोटिस्ड इन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और जो मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड्स हैं दैट कैन बी you can say utilized and noticed is the cost of education. शिक्षा में बहुत कहना चाहिए, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और धीरे धीरे उस एजुकेशन को एंड्स को मीट कर पाना, फॉर्मल एजुकेशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और इंक्रीजिंग चेंजेस को कैसे समझा जा सके, कैसे एक्सेप्ट किया जा सके, उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं उस एजुकेशन के इंटरनेट को मीट करने के लिए देयर आर मेनी पीपल। देखिए आप इस दौरान जब हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, जब हम जूम के क्लासेस होल्ड कर रहे थे, देयर वर स्टिल सम स्टूडेंट्स हु वर लिविंग इन विलेजेस और उन तक नेट पैक नहीं था, उनके पास डेटा नहीं पहुंच पाता था, उनके पास में एक्सपेंसेस बेयर करने की क्षमता नहीं थी, वो अफोर्डेबल नहीं था और वो इंटरनेट जो था वो बहुत स्लो आता था, तो जो नेट की फैसिलिटी थी दे लैक्ड दैट। सो नेचुरली जो थी स्टूडेंट्स तक वो शिक्षा नहीं पहुंच पाती थी, वो इजी एंड चीप नहीं थी। तो उसको इजी और उसको असेसिबल बनाने के लिए, उसको चीप बनाने के लिए, सस्ता करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस अकर करें, तभी हम वो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के उसको हम मीट कर पाएंगे, उसको फेस कर पाएंगे एंड वी कैन see what the students can learn during that process. Or students can have an easy and cheap access to the internet facility with the help of cyber cafes and the various other cheap internet for home connections, जो वाईफाई स्कीम्स हैं, जो डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स की लर्निंग को कराते हैं। How it can be made effective is the point, that how it can be made for the students benefit. और बच्चे तभी सीख पाएंगे, तभी लर्निंग कर पाएंगे जब उनको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान होगा। उनके लिए सी व्हाट हैपेंस, बहुत सारी कंट्रीज के जो स्टेट्स हैं वो स्टेट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ एजुकेशन। तो जब तक फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात हम केवल प्राइवेट सेटअप में ना बात करके, जब हमारा सिस्टम ही चेंज करेगा, जब हमारे यहाँ सब एक प्रकार का समान शिक्षा होगी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब हमारी शिक्षा का सिस्टम ऐसा होगा कि सब जगह एक समान होगा, तभी वो ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाएंगी, डाउनलोड कर पाए, बच्चे उसका फायदा उठा पाए, उसके दौरान लर्निंग को ज्यादा अच्छा कर सके। So for that it is necessary that the learning continues to be in a more, you can say, learning process. So naturally that is how that learning continues. So in order to make this learning more effective, most cost economically effective, more accessible for people, इसके लिए और efforts गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करने पड़ेंगे। और हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी नए ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के, तभी संभव है। हम कब तक नहीं हम उस तक पहुंचेंगे। हमें अगर नई चीजों को अपनाना है, नई चीजों तक पहुंचना है, तो हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी और करनी पड़ेगी। हम उनकी तरफ कैसे लोगों को प्रेरित करें, हम कैसे, अब आप जब कभी किसी चीज को नई चीज मार्केट में आती है, तो उस चीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका सबसे अधिक क्या होता है?
उस केस में ये होता है कि आप लोगों से कहते हैं कि भाई ये आपके फायदे की चीज है, ये आपको सस्ती पड़ेगी, ये बेहतर है, इससे और ज्यादा फायदे हैं, जो दूसरी चीजें एग्जिस्टिंग थी उससे बेहतर फायदे हैं. सो नेचुरली यू हैव टू मेक दिस cost of education more effective, more cheaper, more reachable, fast reaching, and the expenses of internet facilities should be low and affordable. So ये जो साइबर कैफेज हैं ये सरकारी तौर पे हों, जिसमें कि इन साइबर कैफेज में सस्ता और ज्यादा अफोर्डेबल चीजें लोगों तक पहुंच पाए. Another different trend that can be traced in the methodology of education is that with the lots of education information to gather and more books to study, students are found to be more burdened with studying, learning and grasping the material and the lectures. On the contrasting note, however, so much effort has been put into the making the learning process an enjoyable one that it is no doubt, you can say, a very difficult process. क्या हो गया है कि जो आजकल का सिस्टम ऑफ एजुकेशन अभी तक चला आ रहा था उसमें बुक्स को लाद कर बच्चे बैग भारी भारी बोझा लेकर के स्कूल में जाते हैं और वहां पर उनको लाद कर वो बुक्स ले जाना, उनको पढ़ना, उनको फिर वापस लाना, दे आर बर्डन विद देम. आप अगर आपने सुना हो यशपाल कमेटी का नाम, जिसके दौरान लर्निंग विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन एंड हाउ टू स्टडी विदाउट दिस बर्डन, इसके बारे में ही यशपाल कमेटी का संगठन किया गया था हमारी कंट्री में, जिसमें ये बात तय की गई थी कि एजुकेशन के सिस्टम में चेंजेस क्या करे जाएं, जिसके दौरान कॉन्ट्रास्ट के नोट पे कैसे एफर्ट्स किए जाएं जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को न केवल बर्डन रहे बल्कि उसको ज्यादा एंजॉयबल बनाया जा सके, ज्यादा बच्चों के सीखने के प्रोसेस को ज्यादा learning process को you can say it should be made interesting. Now just to quote you some example, I would say recent times में I know of a school, of a CBSE school, जहाँ पे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिना किसी बैग के, बिना किसी बुक्स के, केवल एक छोटी सी डायरी अपने बैग में और टिफिन और बॉटल लेकर के, और डायरी का पर्पस सिर्फ ये होता है कि वो उसमें कोई खास नोट दी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचानी हो, तो वो उनका पर्पस होता है. नाउ इस केस में क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो ज्यादा यू कैन से इट बिकम्स मोर इम्पैक्टफुल. सो ये लर्निंग जो होती है इट इज सेड टू बी इन अ वे वेयर स्टूडेंट्स लर्न, और लर्निंग होती है मगर बहुत इंटरेस्टिंग वे में होती है. एंड व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग वे? उस इंटरेस्टिंग वे ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को सिखाया गया कि किस प्रकार से पौधा बड़ा हो रहा है. सपोजिंग यू हैव टू टीच दैट कि बच्चा कैसे सीखेगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट को क्या जरूरत होती है, हवा की, लाइट की, पानी की, सूरज की रोशनी की. तो इसके लिए बच्चों को जरूरी नहीं कि आप बैग बोझा लेकर के आएंगे. सो इट इज, ये हम छोटे क्लास की बात कर रहे हैं, मे बी क्लास प्रेप क्लास, स्मॉल क्लासेस इन चिल्ड्रन आर जस्ट 4-5 years old. धीरे धीरे लर्निंग के प्रोसेस पे बढ़ते जाती है और उनकी बुक्स ना होकर के उनको लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय न्यू टेक्नोलॉजी. आप विद्यालय में ही बहुत तरह की टेक्निक्स के आप लैपटॉप्स यूज करते हैं, उसकी जगह आप बड़ी स्क्रीन पे आप उनको दिखाएं, प्रेजेंटेशंस दें, उनको कुछ करने का मौका दें. सो दे लर्न ऑन दैट प्रोसेस और उसी के दौरान उनको कॉन्ट्रास्टिंग वे में नॉलेज के बारे में पता चलता है. सो आप छोटे बच्चे हैं, बीज लेके गए, उन्होंने किसी उसमें बो दिया छोटे छोटे पॉट्स में, और उस बीज में रोज पानी डाल रहे हैं. जब वो छुट्टी हो गई, बच्चे चले गए, एंड दे कम टू नो दैट दिस लर्निंग हैज, सडनली द प्लांट्स डाइड बिकॉज देयर इज नो वन टू गिव वाटर. ना पौधे को पानी मिला, ना पौधे को लाइट मिली, देयर क्लासरूम्स बंद हो गए और पौधा मर गया. तो क्या हुआ? बच्चों ने सीखा. और ये लर्निंग जो है ये किसी और अन्य फॉर्म में न लर्न करके बच्चों को किताबों के माध्यम से नहीं, बहुत सारी चीजें उनको बर्डन ना देते हुए, यशपाल कमेटी यही कहती है कि उनकी लर्निंग जो है, ग्रास्पिंग ऑफ मटेरियल इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ दे लर्न इज आल्सो इम्पोर्टेंट. केवल नॉलेज को दिमाग में घुसना, बच्चों के घुसाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस और वो उसके दौरान लर्निंग करते हैं. So why should they not learn in such a manner that it proves to be more effective?
and this way, this learning is more interesting for them. Next, I come to this slide. Another conflicting, you can say, tendency that can be found in the results is roughly that every part of the country or the problem has been raised in that type of education followed by educational system in India. It does not always result in the offering jobs to the graduates. Our education system does not provide the students with any assurance that they will get a job on completion of the educational degree. केवल डिग्री एक्यूमुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो जॉब बच्चों को किस प्रकार से मिल रहा है, हाउ दे आर डूइंग दिस लर्निंग, हाउ इट कैन बी जनरेटेड बाय द मीडियम ऑफ इंटरनेट. Writing articles, web designing, programming, writing reviews, etc. That is equally important, and how they can learn by that process. So we find that this is another very important aspect. ये जो educational system in education India की बात हम करते हैं, इसमें हमें केवल ट्रेडिशनल चले आ रहे एक रूढ़िवादी एक मोल्ड में बने हुए बच्चों की बात हमें नहीं करनी है. हमें ऐसे बच्चों की बात करनी है जो वाकई में विकसित हो, जिनका दिमाग खुला हुआ हो, जिनकी में लर्निंग प्रॉपर तरीके से चल रही हो, जिनका प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ऐसा हो that they learn every single bit of education. And this system of education can be provided not just by simply gaining the routine learning, rote learning and memorization. मगर नई तकनीक के द्वारा जब बच्चे सीखते हैं, नए नए तरीकों से सीखते हैं, तो नेचुरली लर्निंग बेहतर होती है, एंड स्टूडेंट्स लर्न एंड टेंड टू रिमेंबर इट मच मोर. और इसी लर्निंग के लिए हम नए सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नए चेंजेस की बात करते हैं. परिवर्तन हमेशा होता है और परिवर्तन होता रहेगा, किंतु उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें आवश्यकता है कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, हमारे अंदर जो इनोवेटिवनेस है, हम उसको आगे बढ़ने दें. बच्चों की क्रिएटिविटी को कभी कर्व नहीं करना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, ताकि उनके अंदर वो क्षमता हो सके जिससे वो लर्निंग को बेहतर कर सके. It is always necessary, students, that you follow your instinct. You try to learn and grasp new things. You try to accept new things. You should accept changes and accept that learning form also. केवल mugging up, केवल rote learning, केवल learning by books all through is not a too good, great idea. तो इसलिए हम जब आपसे ये बात कहते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप टीचर बनेंगे तो भावी रूप में भविष्य के बच्चों की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आपके हाथ में भविष्य है, आप ट्रेन करेंगे उन बच्चों को. हम लोग तो टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं, हम यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, मगर आप आने वाले हजारों बच्चों को अपने क्लासेस में पढ़ाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे. So it is your duty to see that the students learn in such a manner that they do not become robots, they do not become mugging morons, but they become, you can say, epitome of knowledge. They become ready to accept new knowledge and bring new novelty in their learning aspects. So writing articles and web designing and programming, writing different reviews are amongst those activities. एंड ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो नेट के इंटरनेट की बात करी जाती है, आप सब बच्चे हम जानते हैं, कोई नेट से नहीं घबराता, नेट से बहुत फ्रेंडली है, मगर यही नॉलेज हमें अपने पूरे भारतवर्ष में सारे बच्चों को देनी है, सारे आने वाले भविष्य के बच्चों को देनी है, प्रत्येक गांव में देनी है, तभी हम लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं. So students, talking about new trends and emerging trends in our system, I would like to say that this is simply not relating to different aspects of education system, but ये आपके लिए आवश्यक है कि आप किस प्रकार से अपने education को, learning को कैसे सामने लाते हैं. Now it is not necessary, dear, that we just talk about education in terms of theoretical aspect, but regarding practical aspects also.
So I hope that you have followed today's class. We shall be continuing this class further in the next class, where you should study about more points, more things, more aspects of new emerging trends in education. I hope this class has been fruitful. You may post the questions to me when if you feel any doubt in regarding that. So thank you, dear students. For I hope you have enjoyed. Thank you, class.